میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ ٹاک ٹی وی کے ساتھ رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم موجود ہیں لاہور پریس کلب میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، 20 کتابوں کے مصنف ہیں، انقلابی شاعری جو ہے وہ ان کا خاصہ ہے، اور ان کی شاعری اتنی انقلابی ہوتی ہے کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی تقاریر میں جو ہے نا وہ ان کا سہارا لیا کرتی تھیں، اور جگہ جگہ وہ ان کی شعرائے آفاق نظم پڑھا کرتی تھی، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ باقی انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کی مہربانی، شکر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے ہماری جو نئی جنریشن ہے اس میں قلم کتاب سے وہ لگاؤ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو ویسے ہی جو جنرلی دنیا کے اوپر ایک انقلابی تبدیلی آئی ہیں ذرائع ابلاغ میں کہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اب اس کی جگہ پہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا بہت آ گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے زیادہ معاشی اور دوسرے مسائل رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری حکومتوں کی توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف اور اس طرح کی جو پازیٹیو تھاٹس والی چیزیں ہیں، ادب اور اس کی طرف اتنی نہیں رہی، اتنی کوئی سرپرستی نہیں گورنمنٹ نے کبھی کی، اور نہ ہی ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں جہاں سے نئے لکھنے والے سامنے آئیں۔ تو بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس فیلڈ کو بہت اگنور کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی نئی نسل میں اچھے لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بینظیر صاحبہ سے بڑا ایک اچھا تعلق تھا، قریبی تعلق بھی تھا، آپ ان کی حکومت میں فیڈرل جو ہے نا وہ معاون بھی رہے ان کے ساتھ، تو کیا سمجھتے ہیں اگر آج محترمہ زندہ ہوتی تو پاکستان میں جمہوریت کا یہی عالم ہوتا یا بہتر ہوتی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آج جو صورتحال ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ خلا بھی ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کی وجہ سے پیدا ہوا، کیونکہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جن کرداروں کو پاکستان کی سیاست میں اتارا، ایکچولی وہ حقیقی سیاسی کردار نہیں تھے۔ جیسے عمران خان صاحب کا آپ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی شخصیت تھے اور ہیں، ابھی جو انہوں نے جو کچھ فیصلے کیے ہیں اپنی اسمبلیوں کو توڑنے کے یا استعفے دینے کے، وہ ان کو سب نے سیاسی لوگوں نے منع کیا۔ تو جب ہمارے ہاں غیر متعلقہ لوگ آ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جی جس کا کام اس کو ساجے، تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں اس کا ذمہ دار انہی کو سمجھتا ہوں کہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے ایک قدرتی بہاؤ جو ہے سیاست کا اور ہماری معاشرت کا، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب قدرتی بہاؤ کو دیکھیں، آپ کیوں نہیں نچلی سطح سے لیڈر پیدا ہو رہا ہے؟ اتنے یعنی کروڑوں روپے خرچ کر کے کون الیکشن لڑ سکتا ہے؟ آپ نوجوان ہیں، نوجوانوں کو کہتے ہیں جی آگے آنا چاہیے، آگے تو پیسے سے اگر آنا ہے تو پھر چند ایک لوگ ہی آئیں گے، یا اگر موروثیت کے حوالے سے آنا ہے پھر چند ایک لوگ ہی آئیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قدرتی بہاؤ جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں نے لکھا بھی اس پہ بہت، کہ جو بہتی ہوئی ندی ہوتی ہے وہ اس کا پانی ہمیشہ صاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی گندگی جو ہے اس کو کناروں پہ لگاتی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اسے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک تالاب چاہے صاف بھی ہو، اس کے اندر نکاس کا کوئی نظام نہیں ہوتا اور وہ کائی زدہ ہو جاتا ہے، اس میں کائی لگ جاتی ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاست کو جو مختلف زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور مطلب مقتدر حلقوں نے، وہ کھولی جائیں، اس میں نئے ہوا کے جھونکے آئیں، نئے پانی کی لہریں آئیں، نوجوان سامنے آئیں اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ آئیں، کسی کے بنانے سے نہ بنے۔ آپ کا محترمہ سے کوئی ملاقات ہے؟
जी हाँ। कोई यादगार वाकया सुनाएं कोई जो। मैंने बहुत पहले की बात है, जब मैं उस वक्त मेडिकल डॉक्टर था यहाँ पे अपना जनरल हॉस्पिटल में। तो उस ज़माने में, ये 86 की बात है, बीबी तशरीफ़ लाई थी, जो भी अभी आपने नज़्म का हवाला दिया है, 10 अप्रैल 1986 में। तो उन्होंने वो नज़्म पढ़ी और उसके बाद अखबारों में ये आया कि ये मेरे दोस्तों ने शायद मुझे सेव करने के लिए कहा कि ये डॉक्टर खालिद जान की लिखी हुई, जो इंग्लैंड में है, क्योंकि इससे पहले मैं मार्शल के मुकदमे वगैरह भुगत चुका था, मेरी टांगे बाजू तोड़ दिए गए थे और मेरे पे काफ़ी सख्तियाँ थी। तो बाद में उन्होंने मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी मेहरबानी थी, उन्होंने बड़ा पता करवाया कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि इससे पहले वो नज़्म 1 साल पहले 5 जनवरी 1985 को वो कानवा हाल लंदन में भी पढ़ चुकी थी भुट्टो साहब के यौम वलादत पर। तो वो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे अभी तक याद है कि मतलब उस वक्त वो दुबली पतली और नाजुक सी नौजवान खातून थी। मैं अपनी वाइफ के साथ उनको मिलने के लिए गया, तो उन्होंने बहुत प्यार से, बड़े एहतराम से मुझे मिली, और क्योंकि उससे पहले हम नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि देखें, मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे जो नौजवान हैं वो पार्टी में आएँ और आके काम करें। और इस मकसद के लिए उन्होंने, बल्कि कुछ लोग बैठे हुए थे पार्टी के ऑलरेडी सीनियर लोग, उनसे हट के अलहदा से हम दोनों से मुलाकात की और बड़ी अपनी शफ़क़त का इजहार किया। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ कि मैं, चूँकि कोई इतना नोन आदमी नहीं था, नज़्म मेरी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन लोग मुझे इतना नहीं जानते थे कि बीबी ने इतनी मोहब्बत की। और यही बाद में बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने, जब मैं एक जगह पे नज़्म पढ़ रहा था बिलावल हाउस में पहली मरतबा, तो वो उठ कर आए, तो मुझे बुलाया और फिर स्टेज पे उठ के आए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सियासी, ख़ानदानी और जो लोग पढ़े लिखे हैं, तहज़ीब वाले, ये उनकी एक मैं जिस तरह आप अभी भी देखें कि चाहे 100 बातें कही जाती हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह मुहज़्ज़ब तरीके से उनका रवैया होता है, गुफ्तगू में आदाब होते हैं, तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि आपकी अच्छी तरबियत हो तो वो सामने आता। हम चाहेंगे कि वो नज़म आप ज़रा सुनाएं हमें। और बीबी साहिबा ने मेरे ख्याल से ये काफ़ी जलसों में भी पढ़ी। जी हाँ, वो कहा करती थी, बल्कि उन्होंने इसका ज़िक्र अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी जो है डॉटर ऑफ द ईस्ट, दुख्तर मशरक़, उसमें भी किया है। और वो कहा करती थी कि ये मेरी पसंदीदा नज़्म है क्योंकि इसमें मेरी पार्टी का मंशूर है। तो वो जब पहली मरतबा लाहौर आई तो मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद जो उस टूर में जिस जगह पर भी वो गई उन्होंने वो नज़्म पढ़ी, और वो हमेशा इसको ओन करती थी। फिर उसके बाद 92 में मेरी किताब की रूनुमाई हुई, मैं बागी हूँ, तो उसमें भी फिर वो तशरीफ़ लाईं एक बहसियत मेहमान खुसूसी, और वो भी मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ था। तो मैं समझता हूँ कि ये एज़ाज़, ये जो नज़्म है उसकी पॉपुलैरिटी जो है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी बड़ी लीडर ने इसको हर जगह पढ़ा। तो वो मैं आपके लिए उसके कुछ बंद पेश करता हूँ कि इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफ़रत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आँख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और मज़हब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं।
वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का हरफ आखिर हैं, उन झूठे और मक्कारों से, मज़हब के ठेकेदारों से। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और जो औरत को नचवाते हैं, बाज़ार की जिन्स बनाते हैं, फिर उसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। उन जालिम और बदकारों से, बाज़ार के उन मेमारों से। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं, उन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और जहाँ सांसों पर ताज़ीरें हैं, जहाँ सांसों पर ताज़ीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, ज़ातों के घोरक धंधे हैं, जहाँ नफ़रत के ये फंदे हैं, सोचों की ऐसी पस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और ये इसका आखिरी बंद है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब बीबी ने ये नज़म पढ़ी थी 10 अप्रैल 1986 में, तो ये आखिरी बंद सबसे पहले पढ़ा था। इसमें मौत का जिक्र था। शायद उनके लाशऊर में था कि उन्हें भी अपने बाबा की तरह अपनी जान कुर्बान करनी है। उन्होंने ये पहले बंद पढ़ा और फिर आखिर में भी पढ़ा कि मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म। क्या बात है, वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब छोटी सी एक आखिरी बात, मौजूदा सियासी सेटअप में सियासी जमातों के अंदर से मरूसियत और गैर जमहूरी रवैया कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा? उसका सिर्फ एक ही तरीका है। देखें, जब नदी नाले रवानी से बहते हैं तो वो दरियाओं में गिरते हैं, दरिया फिर समुद्रों में जाते हैं। जब एक भी इसके अंदर से चेन रोक दी जाए तो सैलाब आ जाता है। जब पूरे मुल्क में सियासत जो है वो कुदरती बहाव पर होगी, जहाँ रोज़ रोज़ मार्शल लॉ के ख़तरे नहीं होंगे, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने अंदर जमहूरियत लाने पर मजबूर हो जाएंगी। जो उस मुल्क के अंदर जहाँ 5 साल का पता नहीं है और आखिर में जब जमहूरियत रुकती है तो वो ख़ानदान के कुछ चंद लोग होते हैं जिनको मैदान में आना पड़ता है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो को आना पड़ा, जैसे मरीम नवाज़ को आना पड़ा। तो इससे मरूसियत भी मजबूत होती है। अगर सियासी अमल बिला तातुल मुल्क में जारी रहेगा तो फिर सियासत से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, अफराद हों, पार्टियां हों, उनके अंदर भी जमहूरियत और सियासत आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खालिद जवेद जान साहब, जिनसे बहुत तफसीली गुफ्तगू का मौका मिला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।